हेलो एवरीवन, वेलकम। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वाटर एज अ रिसोर्स को डिस्कस किया था। क्यों वाटर इतना प्रीशियस है हम लोग के लिए, एंड वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम देखी थी, और वाटर हमको पीने के लिए, हमारे यूज़ के लिए किस फॉर्म में अवेलेबल है इस अर्थ पे, इसको हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे multi-purpose river projects and integrated water resource management. What were the various projects that the government of India has implemented or established on various rivers of India, and what were the techniques by which we can save the water, how we can manage the water efficiently? This we will going to discuss in this lecture. So let's begin. But how do we conserve and manage water? Archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structure like dams built of stone, rubble, reservoirs or lakes, embankments and canals for irrigation. Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basins. कह रहा है कि हम लोग वाटर कंजर्वेशन की जो टेक्निक है हमारे इंडिया में, वह कोई आज उत्पन्न हुई टेक्निक नहीं है, वह आज के युग की उत्पन्न हुई टेक्निक नहीं है। दिस टेक्निक इज नोन फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेक्निक्स दैट वी यूज टुडे फॉर मेकिंग डैम्स एंड लेक्स, these techniques were used by our ancestor so many years ago in ancient times. इसका एक एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो एक लेक बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसको सुदर्शन लेक कहते हैं। सो हम ये देख पा रहे हैं कि जो वाटर मैनेजमेंट की टेक्निक है, डैम्स और लेक्स बना के, रिवर्स बना के, यह कोई एक नई टेक्निक नहीं है हमारे भारत के लिए। एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत सालों से भारत में थी। अगर आप देखिए कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो एंशियंट इंडिया से हमको देखने को मिलते हैं, तो उसमें है इन फर्स्ट सेंचुरी BC श्रृंगवेरपुरा नियर इलाहाबाद हैज सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड ऑफ वाटर ऑफ द रिवर गंगा. You know, a place near Allahabad, which is known as Sringaverpura, in the first century BC, they used to channel the water of river Ganga. So you can find an example of water harvesting from the ancient time near Allahabad. एंड देखो, अभी मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक लेक बनवाया गया था जिसको हम लोग सुदर्शन लेक से जानते हैं। यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन या इट वाज ड्यूरिंग एट द टाइम चंद्रगुप्त मौर्य, he used to make the dams, lake and irrigation system were extensively built. You know, when we talk about the Mauryan period, especially in case of Chandragupta Maurya, we find a lot of lot of improvement in agriculture field. So why this improvement takes place? Because the Chandragupta Maurya had adopted various policies in his governance to build the proper irrigation system, proper rainwater harvesting system, proper water harvesting system in his period. So we can find this evidence from the Chandragupta Maurya too. Evidences of sophisticated irrigation works have also been found in Kalinga, Odisha, Nagar Arjun Konda, Andhra Pradesh, कोल्हापुर, महाराष्ट्र एक्सेट्रा. कह रहा है कि हम लोग को ये जो इरिगेशन वर्क का जो काम है वह हमको यहाँ से भी देखने को मिलता है. कलिंग जो कि उड़ीसा में है, नागर अर्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, बेन्नूर कर्नाटका में है, और कोल्हापुर महाराष्ट्र के. इन प्लेसेस से भी हम लोग एंशियंट टाइम में इन प्लेसेस भी हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग या इरिगेशन वर्क्स जो है हुए थे. ऐसे सिस्टम का यूज इन प्लेसेस पर भी था एंशियंट टाइम में. इन द 11th century भोपाल लेक वाज वन ऑफ द आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट. कह रहा है कि if we talk about 11th century lake near in Bhopal, which is also called as Bhopal Lake, was one of the perfect example of this artificial type of lake at that time. Okay, if we talk about the the Delhi and these areas, what do you find?
if you talk about the Delhi or the the Sultanate period, if you have read in the history, you may aware of this period. So in the 14th century, the tank in Hauz Khas Delhi was constructed by Iltutmish for supplying water to Sri Fort area. You know, the Iltutmish was one of the ruler from the slave dynasty who had constructed the Hauz Khas near Delhi, which was having in the form of tank, and this is to supply the water to the fort, the fort in which they used to live. Okay, so these were the various examples that we see from our ancient times. This technique of water harvesting and water preservation is not very new to us. This is a very old technique that we use in here. Okay, what are the dams and how do they help us in conserving and managing water? Dams were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used to irrigate agricultural fields. Today, dams are built not just for irrigation but for electricity generation, water supply for domestic and industrial uses, flood control, recreation, inland navigation, and fish breeding. So, एक्चुअली डैम होते क्या हैं ना, तो डैम कुछ एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिवर्स के वाटर फ्लो को चैनल करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप ये एग्जांपल देख पा रहे हो तो यह एक हीराकुंड डैम है। देखिए ये कैसे जो है इस पे एलिवेशन बनाया गया है एंड हाउ दे यूज टू चैनल द वाटर फ्रॉम द रिवर्स। देखो यहाँ से ये इतना एबंडेंस में पानी था उधर, फिर उसके बाद देखो इधर जो है आपको हल्का हल्का पानी दिख रहा है, इस साइड हल्का हल्का पानी दिख रहा है, इधर इतना एबंडेंस में पानी है और इसके बीच जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर वी रिफर टू एज अ डैम। डैम not only used for the irrigation purposes, we use dam to generate electricity nowadays, that the electricity we get from hydropower, that we जब क्या होता है कि जब पानी जो है डैम से ऊपर से गिरता है तो कुछ टाइप के जो है रोटेटरी लगे होते हैं साफ्ट में, और जब उस पर पानी गिरता है दे यूज टू रोटेट एंड दे कन्वर्ट द this mechanical energy that the water falling from the very height, तो उसको वो लोग इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं इस टेक्निक से, और हम लोग इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। डैम को इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। हम लोग डैम बना के फ्लड कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एरिया है जहाँ पर बरसात होने के कारण जो नदी है उस एरिया से जो बहती नदी हुई है उसका स्तर बढ़ जाता है और जो वाटर लॉजिंग है उस एरिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है, तो इसको फ्लड कहते हैं। तो इसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं डैम बना के, जो उस रिवर के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करे और उस समय हम लोग उसको चैनल कर सके वाटर को। सो हम लोग डैम के थ्रू उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और डैम का इस्तेमाल आज के समय में केवल इरिगेशन के लिए नहीं सीमित रहा है। आज हम लोग डैम का इस्तेमाल फॉर वेरियस एक्टिविटीज करने लगे हैं। डैम इज अ मल्टी पर्पजली यूज टुडे। Hence, dams are now referred to as multi-purpose projects, where the many of the impounded water are integrated with one another. For example, the Satluj ब्यास रिवर बेसिन। देखो सतलज और ब्यास रिवर बेसिन पे एक डैम बनाया गया है जिसका एग्जाम्पल है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, जिसको कहते हैं भाखरा नंगल डैम भी कहते हैं। अगर आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस पे आप ध्यान दीजिए कि कौन सा रिवर किस स्टेट में फ्लो करती है एंड जो डैम है वह किस रिवर पर बनाया गया है। फॉर इसलिए क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस है मैप टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि लोकेट दिस डैम ऑन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। सो यू विल लिसन दिस थिंग्स विथ वेरी केयर। ओके, केयरफुल्ली आप लोग लिसन कीजिए इस चीज को, क्योंकि इससे क्वेश्चंस मैप वाइज बनते हैं। द हीराकुड प्रोजेक्ट इज द महानदी बेसिन इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद द फ्लड कंट्रोल। और जो हीराकुड हमने डैम ऊपर देखा था वह महानदी पे बना हुआ है जो कि कंजर्व करता है वाटर को, ताकि फ्लड को कंट्रोल किया जा सके
जिधर महानदी बहती है, जिधर ये नदी बहती है, उस एरियाज में इस डैम को इसलिए बिल्ड किया गया ताकि वी कैन चैनल द वाटर एंड वी कैन कंट्रोल द फ्लड इन दैट एरिया. Multi-purpose projects launched after independence with their integrated water resource management approach were thought as the vehicle that would lead the nation to the development and progress overcoming the. देखो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंस हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को रिवर्स पर इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिए ताकि हम लोग वेरियस प्रॉब्लम को टैकल कर सके, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो, चाहे वो इरिगेशन प्रॉब्लम हो, चाहे वो फ्लड की प्रॉब्लम हो. सो उसको हम लोग टैकल कर सकें, इसलिए जो है हम लोग इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करना और बिल्ड करना स्टार्ट कर दिए. अब देखो डैम को समझते हैं. डैम इज अ बैरियर अक्रॉस flowing water that obstruct, directs or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment. Dam refers to the reservoir rather than the structure. Most dams have a section called a spillway or way over which or through which it is intended that water will flow either intermittently or continuously. You know, सीधे कह रहा है डैम एक बैरियर. हमने देखा था हीराकुद डैम को कैसे वो नदी की वाटर के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है. तो डैम बेसिकली एक बैरियर के रूप में वर्क करता है और यह ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, वाटर को रोक सकता है, दूसरे डायरेक्शन में डायरेक्ट कर सकता है या उसके फ्लो को रिटार्ड कम कर सकता है. दिस इज द पर्पस, दैट इज व्हाई द डैम इज कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज द वर्क ऑफ डैम. ओके, सो overcoming the handicap of its colonial past. मल्टीपर्पज प्रोडक्ट्स हम लोग इसलिए स्टार्ट कर दिए लगाना क्योंकि जो हम लोग वो कॉलोनियल पास्ट था हम लोग का, जिससे हम लोग ओवरवेल्म थे, उससे हम लोग ओवरकम कर सके. और जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम the dams as the temples of modern India, region being that it would integrate development of agriculture and village economy with a rapid industrialization and growth of urban economy. तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने यह भी कहा कि जो डैम्स हैं वह टेम्पल्स हैं मॉडर्न इंडिया के, आधुनिक भारत के मंदिर हैं जो डैम्स हैं, बिकॉज दे कैन लेड टू द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एट अ वेरी vast scale and improve the agricultural activity in India, which will improve the village economy. So इसलिए जो है डैम्स को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया था क्योंकि हम लोग जानते हैं वाटर जो है वो बहुत ही प्रीसियस रिसोर्स है एंड वी कैन नॉट वेस्ट द वाटर. सो इफ डैम इज समथिंग बाय विच वी कैन मैनेज द वाटर, that we can manage the flow of water. This is the very necessary thing to be built in a country or a state. जब हम लोग यह जानते हैं कि पानी जो है, वाटर जो है, जल जो है, वह एक बहुत ही प्रीसियस रिसोर्स है हम लोगों के लिए और उसको हम लोग डैम्स द्वारा, रिजर्वायर द्वारा मैनेज कर सकते हैं, तो भाई किसी भी कंट्री और स्टेट के लिए इसको बनाना जरूरी हो जाता है कि हम लोग वाटर का एफिशिएंट यूज कर पाए. अगर आप यहाँ पर देख पाए तो ये है एक जो है दामोदर वैली रीजन के लिए. दामोदर दामोदर रिवर्स इज द सॉरो ऑफ बंगाल. इट इज फ्लो थ्रू द वेस्ट बंगाल एंड हियर यू विल फाइंड that some folk song is written. This is the people who live in that area of the Damodar. So Damodar river, they used to sing this, and Damodar is the sorrow of Bengal or the river of sorrow जिसको कहते हैं. In recent year, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. Regulating and damming of rivers affect their natural flow, causing poor sediments flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds and poorer habits for the river's aquatic life. Dam also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate, especially for spawning. The reservoirs that are created on the floodplains also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. देखो एक तरफ हम लोग देख पा रहे हैं कि how dam is used to preserve the water, how we can manage the water, but building dams have also some disadvantages, some cons.
पहला तो ये कह रहा है कि हम लोग जो है रिवर के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो जो उसका नेचुरल फ्लो है उसको डिस्टर्ब करते हैं। हम लोग जब नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं तो जो वाटर के अंदर, पानी के अंदर, जल के अंदर जो एक्वाटिक लाइफ है, मरीन लाइफ है, उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। हम लोग उसके अंदर के फौना मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन द वाटर, उसको हम लोग डिस्टर्ब करते हैं। और जिस एरिया में हम लोग डैम लगाते हैं, वाटर को चैनल करते हैं, तो वहाँ पे बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का, लोग रीलोकेट किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, तो हम लोग कहीं ना कहीं उनके नेचुरल हैबिटाट को भी डिस्टर्ब करते हैं, चाहे वो वेजिटेशन के रूप में हो, चाहे पीपल्स के रूप में हो। बाय बिल्डिंग डैम्स वी हैव दिस टाइप्स ऑफ डिसएडवांटेजेस। अब आइए, एक फैक्ट है नीचे मेंशन है, क्या आप जानते हैं जो सरदार सरोवर डैम है has been built over the Narmada River in Gujarat. This is one of the largest water resource projects of India, covering 4 states: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। क्या आप जानते हैं कि जो सरदार सरोवर डैम है वह नर्मदा नदी गुजरात में बना हुआ है, और यह एक बहुत ही बड़ा वाटर प्रोजेक्ट है जो मैनेज करता है वाटर को 4 स्टेट के लिए: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट would meet the requirement of water in drought-prone desert areas. Sardar Sarovar project will provide irrigation facilities to 18.45 lakh hectare of land, covering 3,112 villages in 15 districts of Gujarat. You know, this dam is very vast and it can manage the irrigation facilities up to 18.45 lakh hectare of land, और जो कि 3,000 गांव जो हैं, 15 जिलों के 3,000 गांव जो गुजरात में है, उनको ये इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इट विल आल्सो इरिगेट 2,46,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन द स्ट्रेटेजिक डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बाड़मेर एंड जलोर, राजस्थान, और यह इरिगेट करेगा 2,46,000 हेक्टेयर लैंड को, जो कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और जलोर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के। एंड इट आल्सो इरिगेट द 37,500 hectare in hilly tract of Maharashtra through a lip. About 75% of the command area in Gujarat is drought prone, while entire command in Rajasthan is drought prone. तो यह कैसे जो है, यह जो सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा रिवर पर बनाया गया है, हाउ दिस डैम इज प्रोवाइडिंग द इरिगेशन फैसिलिटीज टू द ड्रॉट प्रोन एरियाज, जो एरियाज में सूखा पड़ जाता है गुजरात के, महाराष्ट्र के और राजस्थान के जिन एरियाज में सूखा पड़ जाता है, हाउ दिस डैम, दिस प्रोजेक्ट सरदार सरोवर प्रोजेक्ट facilitate the irrigation for this area. We can see it from here. Okay, irrigation has also changed the cropping pattern of many regions, with the farmers shifting to water intensive and commercial crops. This has great ecological consequences like salinization of the soil. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana has been started, which ensure access to some means to protective irrigation for all agricultural farms in the country, thus bringing much desired rural prosperity. You know, irrigation जो है अगर हम लोग फैसिलिटेट करेंगे तो जो फार्मर्स हैं वो शिफ्ट होगा, उसका जो उनका एग्रीकल्चर फार्मिंग पैटर्न है वह कॉमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर जो है शिफ्ट होगा, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, जो कि सॉइल की सैलिनिटी को भी खराब करती है। इसलिए जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इरिगेशन, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, इरिगेशन को हिंदी में सिंचाई कहते हैं, सिंचाई योजना है। यह जो इरिगेशन जो है लैंड्स में, जो फील्ड्स हैं उसमें प्रॉपर वे में हो, इसको इंश्योर करने के लिए एक जो है योजना है, एक स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है इम्प्लीमेंट की गई है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि योजना। क्योंकि भाई ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इरिगेशन होता है इसको इन लोग इनएफेक्टिव रूप से करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा लैंड है वो डिग्रेड होता है। हमने पढ़ा था क्लास 10 के पहले चैप्टर में, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में, लैंड डिग्रेडेशन। उसमें हमने देखा था कि कैसे जो ओवर इरिगेशन है
और अन एफिशिएंट इरिगेशन है एरियाज ऑफ हरियाणा एंड पंजाब के रीजन और वेस्टर्न यूपी के रीजन में, तो कैसे लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Some of the broad objective of this program are to enhance the physical access of water on the farm and expand cultivable area under assured irrigation. हर खेत को पानी, improve on farm water use efficiency to reduce wastage and increase availability both in duration, and extend irrigation and other water saving technologies per crop, more crop, and introduce sustainable water conservation practices etc. अब कह रहा है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसको आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज राइट शॉर्ट नोट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो पहला आप क्या लिखेंगे कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम टू इनहेंस द फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म, फिर एंड एक्सपेंड द कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, दैट इज हर खेत को पानी। फिर थर्ड, इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज इफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। फिर फोर्थ आप लिखेंगे एंड इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बोथ इन ड्यूरेशन एंड एक्सटेंड इरिगेशन एंड लो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी को हम लोग इसको जो है इन्हांस कर पाएँ या इसको यूज में ला सके, इसको भी लिया गया। फॉर एग्जांपल पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक ड्रॉप से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को उसको इरिगेट कर पाएँ, that is the motto of this प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। and to introduce sustainable water conservation practices that we cannot use the water by wasting it, और ओवर यूज नहीं करें हम लोग वाटर का, जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें सिंचाई में। इस जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसका अहम था। अब एक अगला है कि आप क्या जानते हैं कि जो कृष्णा गोदावरी रिवर है वो डिस्प्यूट का कारण है दो स्टेट्स के लिए, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। इट इज रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड फॉर अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। दिस वुड रिड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट विथ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जो कृष्णा एंड गोदावरी रिवर है उसका जो फ्लो है वाटर का कोयना की तरफ डाइवर्ट किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। इसको लेके जो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने ऑब्जेक्शन रेज किए थे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे स्टेट में काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो चाहे वाटर का यूज हो। Ironically, the dams that were constructed to control floods have triggered floods due to sedimentation in the reservoir. Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall. कह रहा है कि जिन डैम्स को हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया था फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, वह अब फ्लड्स को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखो कोई भी जो डैम है वह लंबे समय से अगर पानी का ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो हम जानते हैं कि जब वाटर फ्लो होता है, वाटर की स्ट्रीम चलती है, उसका जो वाटर का पानी है जब बहता है तो वह अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स, कुछ पार्टिकल्स को मूव कराता हुआ लेके आता है। तो जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहाँ पर वाटर रुकेगा तो पार्टिकल भी सेटल डाउन होंगे। जब सेटल डाउन होंगे तो पार्टिकल ज़्यादा इकट्ठा होंगे, और जब इकट्ठा होंगे तो आपको पता है कि आपने अगर एक कहानी सुनी होगी तो एक कौवा था जो छोटा से बर्तन था जिसमें उसका जो वो रहता है, चोंच उसकी जो रहती है, माउथ उसका जो रहता है उसमें नहीं जा पाता, तो वो क्या करता है कंकड़ उठा के उस पानी के अंदर डालता है तो ताकि पानी का जो लेवल है वो राइज होता है एंड दैट ही कैन ड्रिंक इट इजिली। तो उसी तरीके से जब ज़्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठा होंगे तो जो वाटर का लेवल है, जो सरफेस लेवल है वो इंक्रीज होगा एंड वाटर उसके ऊपर होगा। तो इसलिए कह रहा है कि जो फ्लड्स जो डैम्स फ्लड्स कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे वो फ्लड्स को बढ़ावा दे रहे हैं। दिस फ्लड्स हैव नॉट ओनली डिवास्टेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी but also cause extensive soil erosion. Sedimentation also meant that the flood plains were deprived of silt and natural fertilizer, further adding on the problem of land degradation. It was also observed that the multi-purpose projects induced earthquakes, caused waterborne disease and pest and pollution resulting from excessive use of water. कह रहा है कि जो यह डैम्स बनाए गए हैं फ्लड्स कंट्रोल के लिए वो फ्लड्स को बढ़ावा दे रहे हैं, और यह फ्लड्स जो है काफ़ी हार्म पहुंचाते हैं हमारी लाइफ को, हमारे प्रॉपर्टी को,
और सॉइल को भी जब फ्लड्स आएंगे तो जो ऊपर का सिल्ट पार्टिकल होता है, जो ह्यूमस रिच पार्टिकल होता है, वह फ्लड के साथ फ्लो हो जाएगा एंड जो वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जो फ्लड्स जहाँ आपको पता होगा कि अगर पानी कहीं पर ज़्यादा देर तक ठहर जाए तो वाटर लॉजिंग के कारण कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेस उत्पन्न हो जाती हैं, जो हमको हमारे ह्यूमन लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है फ्लड के इतने डिसएडवांटेज हैं। फ्लड के कुछ एडवांटेज है, उससे ज़्यादा डिसएडवांटेज है। वो डैम के कुछ एडवांटेज है, उससे ज़्यादा उसके डिसएडवांटेज है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला हम लोग कंटिन्यू करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेक्स्ट लेक्चर में, और हमको लगता है चैप्टर आपका वाटर रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी कंटेंट का हेल्प उनको भी मिल पाए। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पिन करें, आई विल आंसर देयर। ओके, थैंक यू एवरीवन।